एक्टर्स तो इनसिक्योर होते ही होते हैं, बट बाकी के भी सेल्फ एस्टीम इतना लो है कि उनको लगता है मूवी बिजनेस में आकर उनका सेल्फ एस्टीम जो है बड़ा हो जाता है. दे बिहेव लाइक इडियट्स. सो इंडस्ट्री इज फिल्म मेकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, इंडस्ट्री इज अ प्रॉब्लम. वेलकम टू सोशल. ऐसा कई बार हुआ है जब सेलिब्रिटीज ने इंटरव्यूज में ऐसी बातें रिवील की हैं जो फेमस होने की एक नेगेटिव साइड दिखाती है. These interviews have been sensational because the celebrities have spoken without any kind of fear. इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 इंटरव्यूज के बारे में बताने जा रहे हैं which showed the dark side of celebrity lives. This is going to be an interesting video, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें. नंबर 10, कंगना रनौत. कंगना ने जब कॉफी विद करण में नेपोटिज्म की बात की थी, इट शॉक्ड द होल इंडस्ट्री. You can even call her the flag bearer of the nepotism debate. Not only this interview, she has done hundreds of interviews where she has talked about how Bollywood favors insiders and treat outsiders like they don't even exist. Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. Intolerant is the Yeah, word. flag bearer of nepotism. The movie mafia. नंबर 9, सिद्धांत चतुर्वेदी. जब गहराइयां रिलीज हुई थी उस टाइम सिद्धांत को मासेस से बहुत हेट मिली थी. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये उनके लिए काफी शॉकिंग था. He said something which was so true and exposed the hypocrisy of the audience. उन्होंने बताया कि कैसे ऑडियंस चाहती थी कि वो हमेशा एक आउटसाइडर ही बनकर रहे और इसी इमेज के साथ अपने करियर में आगे बढ़े. मगर जब सिद्धांत ने धर्मा, एक्सेल और YRF जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करना शुरू किया, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. Everyone started questioning how he became so successful in such a short span of time. What happened is, after Gully Boy, I was like underrated, everybody was there. And then suddenly when Gehraiya came out, everybody was saying that, oh, he's overrated. So I did a Yash Raj film, I did a Dharma film, and I did an Excel film right now. People were like, how is he getting so much? He's an outsider, how is he getting into the lobby? नंबर 8, रणवीर शोरे. बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके और किसी और पावरफुल सेलिब्रिटीज के बीच डिफरेंसेस आ जाते हैं तो वो सेलिब्रिटी आपका करियर खत्म करने में लग जाता है. ऐसा ही कुछ रणवीर शोरे के साथ हुआ था अर्ली 2000s में, जहां उन्हें प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने बॉयकॉट कर दिया था. He had put all sorts of allegations on him and asked everyone else to not give him work. नंबर 7, अक्षय कुमार. हम सब जानते हैं कि अभी अक्षय का करियर एक लो फेज से गुजर रहा है. His films are not working despite him giving his best in every way. इसी बारे में उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि कैसे कुछ लोग इंडस्ट्री में बहुत खुश होते हैं जब उनकी फिल्म नहीं चलती है. See, this is what fame is all about. जब आप टॉप पर होते हैं तो हर कोई आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, but when you begin to fail, वही लोग आपका मजाक बनाने लग जाते हैं. Listening to Akshay saying these things truly broke our heart. People love seeing it when 3, 4, 5 films doesn't work. People love seeing it. What does that mean? People love seeing it. क्या मैं People in the industry. Yeah. हाँ. That I have seen it myself. Number 6, Vidya Balan. We all should appreciate that somebody like Vidya Balan had given an interview where she talked about how people in the industry fat shame people. ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है और इसके बारे में विद्या ने कई इंटरव्यूज में बात की है. जस्ट इमेजिन कि उनके कैलिबर के एक्टर को फिल्म मेकर्स आज भी कास्ट करने से मना कर देते हैं क्योंकि इन लोगों को विद्या के बॉडी वेट से प्रॉब्लम है. If this is the case in 2024, then even the future doesn't look very promising. There would be people who tell me that, oh, you've got such a beautiful face, why don't you lose some weight? People would say, you don't look like you enjoy exercise at all. And do you know, Namita, I am someone who works out, dedicated. Number 5, शाहरुख खान. शाहरुख के इंटरव्यूज भी उनकी फिल्म्स की तरह बहुत पॉपुलर हैं. इन इंटरव्यूज में उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही हैं जो शायद कोई और इतना ओपनली ना कह पाए. जैसे कि उन्होंने कई बार बोला है कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लास्ट नेम दैट ही ऑलवेज हैज टू प्रूव हिज पेट्रियोटिज्म. इतने बड़े ग्लोबल आइकन होने के बावजूद भी उनको कई लोग एंटी नेशनल कहकर ट्रोल करते हैं और उन्हें अपनी लॉयल्टी प्रूव करने को कहते हैं. Questioning your Indianness, your patriotism. And that's one thing I think no Indian should be questioned, because you don't have to ask, you don't have to explain that why you love your motherland or why you love India, how you are. And I'm very proud, very strangely, not strangely actually, very naturally, I'm very proud because my dad was a freedom fighter.
नंबर 4, विवेक ओबरॉय। हम सब जानते हैं विवेक का वो इंटरव्यू जहां पर उन्होंने ओपनली सलमान खान को चैलेंज किया था और उनके बारे में काफी चीजें रिवील की थी, मगर इसके बाद उनका करियर ही डाउनफॉल पर चला गया। He started getting ignored by big producers and was removed from a lot of films. उनके इस डार्क फेस के बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बात की और बताया कि कैसे इंडस्ट्री आपके अगेंस्ट चली जाती है अगर आप किसी पावरफुल सेलिब्रिटी को पब्लिकली टारगेट करते हो तो। जब वो अटैक मुझ पर हुआ उसके बाद कि लोगों को कहा गया कि यू कांट वर्क विद हिम, लोग आते थे मुझे कहते थे कि भाई हमें साइनिंग अमाउंट वापस दे दीजिए क्योंकि हम आपके साथ फिल्म नहीं कर सकते हैं, हमें वहां से प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर है, इस लॉबी से प्रेशर है, उस लॉबी से प्रेशर। नंबर 3, अनुष्का शर्मा। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड एक मेल ड्रिवन इंडस्ट्री है। द एक्ट्रेसेस आर ट्रीटेड अनइक्वली इन अ लॉट ऑफ वेज और इस बारे में अनुष्का ने कई इंटरव्यूज में बात भी की है। जैसे कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्री इतनी मेल डोमिनेटेड है कि शूटिंग के दौरान होटल रूम्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। The actor gets everything as per his desire, but it is the actress who has to compromise by staying in B-grade hotels. You always feel, yeah, you feel that discrimination. In fact, it's not just with money; it's also in general. There's a discrimination in general in terms of like, I swear to God, it's like even if you're an outdoor schedule, you know that the guy is going to get a better room than you. No. Yes. Are you serious? Yes. नंबर 2, कंगना रनौत। कंगना ने इतनी बार इंडस्ट्री की डार्क साइड को एक्सपोज किया है that we had to mention her twice in the video. उन्होंने रिसेंटली ही एक न्यूज चैनल पर कास्टिंग काउच के बारे में काफी चीजें रिवील की थी। She said that the actresses have to please the producer or the star in order to get a role. उन्होंने ये तक कह दिया कि एक स्टार एक एक्ट्रेस को अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता है और उसे ऐसी डिमांड्स करता है जिनके बारे में पब्लिकली बात नहीं की जा सकती। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबको जनरलाइज कर रही हूं, मैं जिसको मिली हूं A लिस्ट, B लिस्ट, A+, biggest superstars. The expectation from a girl is to behave like a wife on the sets, and next film comes, next hero comes. नंबर 1, अनुराग कश्यप। चाहे वो बॉलीवुड में ओरिजिनलिटी की कमी हो या फिर स्टार्स की टैंट्रम्स, अनुराग हैज नेवर फियर्ड फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ टू द मीडिया। एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे स्टार्स की अनरियलिस्टिक डिमांड्स की वजह से फिल्म का बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक प्रोड्यूसर फिल्म मेकिंग से ज्यादा स्टार्स की डिमांड पूरी करने में मोर देन हाफ द बजट स्पेंड कर देता है और इसी वजह से मूवी की क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है। My most ridiculous story I heard was that somebody who had a chef who charged 2 lakh rupees per day to make this strange healthy food जो देख के लगता था खाना है, ये तो बर्ड फीड है, इतना छोटा सा आता था। 2 lakhs a day. 2 lakhs a day. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन सब में से वो कौन से इंटरव्यूज थे which completely shocked you. तो चलिए that's a wrap on this video. आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।